Hello friends, good evening to all of you. Okay. In previous class we just studied about the um, grammar part, है ना? That is introduction of letters, words and sentences. And the second one was kind of speech. Third one was tenses and silent letters. Okay. So today we are going to study about letters. In grammar part, introduction of letters, words and sentences. Okay, so let's start the class. Letters are known as an alphabets. As we all know what is letters. In our school we have studied all about the letters. There are 26 of alphabets that we call it as letters in English. Understood? This is very important to learn English in English. I had told you in the previous class also, क्योंकि जब तक आपको लेटर्स की पहचान नहीं होगी कि लेटर्स क्या होते हैं, तब तक आप जान नहीं पाओगे, है ना, कि लेटर्स क्या, हमने किस तरह से लेटर्स यूज करने हैं. Okay, so there are two forms of an alphabet. Those are called as an capital letters. First one is capital letters and second one is small letters. In that, in that first one is capital letter. The second one is small letters. So capital letters we will write it as like this in capitals, and small letters we will write in like this, A B C D. um, both are written as the same, but the structure and the forms are different, है ना. सो ये हमें इसलिए जानना जरूरी है कि हमें समटाइम्स पता नहीं चलता कि कौन सा स्मॉल लेटर्स लिखना है, कौन सा कैपिटल लेटर्स लिखना है. अंडरस्टूड. एंड आफ्टर दैट विल कम टू द वर्ड्स. हम वर्ड्स कैसे वर्ड्स कैसे बनते हैं, मतलब कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज सम मीनिंग. दैट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स. जब कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स, फॉर एग्जांपल यू टेक अ बॉय, काउ, गर्ल, ऑल, फूल, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना. ये वो हैं जो मतलब कि फॉर एग्जांपल यू टेक एक ग्रुप लिया, एक लेटर्स का उन्होंने एक ग्रुप लिया है, बंचेस दे हैव टेकन, and that bunches we call it as a that letters of bunches we call it as a uh, bird word, we can say. Okay, बॉय, बी ओ वाई बॉय, है ना. यहाँ पे हमें लेटर्स की पहचान हुई है कि ये बॉय इस तरह से लिखा जाता है, बी ओ वाई बॉय. तभी हमें पता चल रहा है कि ये लेटर्स यहाँ आएंगे, और इन लेटर्स को मिलाकर क्या बना है, बॉय बना है. अंडरस्टूड. एंड सेकेंड वन इज काउ, सेम इट इज सेम, गर्ल, owl, owl we can say. Understood. And the third one is sentences. Sentences is a group of words that makes the complete sense. मतलब कि जो ये जो वर्ड है ना, जिनसे हमने लेटर से वर्ड बनाए हैं, वही वर्ड हमने ग्रुप में क्रिएट किए हैं, ग्रुप में बनाए हैं. उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं. Okay, that makes the complete sense with. In order, if we will not write in order, that doesn't make sense. उनका सेंस भी होना चाहिए. अगर हमने कोई वर्ड्स चूज किए हैं, if we have chosen any word to make a sentence, that then there must be a sense, then there must be a meaning, there must be a what you call sense.
Otherwise it does not call it as a sentence. Okay, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ सेंटेंस बिकॉज अगर आपके पास उस वर्ड का उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे जानोगे कि व्हाट इट इज अंडरस्टूड. सो फॉर एग्जांपल you take it as a rearrangeable. I will write it like a nest build word. Is it making any sense here? No, na. They know all the words are there, all the words group of words are there, but it is not making any sense, so it does not call it as a sentence. When it makes sense, when we will write in order, then only it is sentence. Understood? So it is see how we will write this as a rearrangeable. Words build nest. है ना. इसका सेंटेंस बन रहा है ना एक कि बर्ड्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं. एंड द सेकंड वन, सी योर सेकंड वन लाइकवाइज, द पीकॉक इज डांसिंग. पीकॉक इज डांसिंग. इसका भी एक सेंस बन रहा है कि मोर जो है वो डांस कर रहा है. अंडरस्टूड. आईएनजी यहाँ पे लगा है, इट इज कॉल्ड इट एज अ वर्ब वन प्लस आईएनजी. लेटर वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट आपको आज बस इतना ही समझना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस क्यों बनाए जाते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं. अंडरस्टूड. जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन अ सेंस, नॉट इन अ नॉन सेंस, नॉट इन द वी कैन इन अ नॉट इन अ मीनिंगफुल, है ना. जब तक उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा, वी वी we didn't call it as a sentence. Okay, friends, understood? Now, take down the remembering points. In sentences, what we have to remember. Okay, the first one is every word of the sentence will start with the capital letter. That means कि अगर हमने कोई भी जैसे for example you take here I have written this, the peacock is dancing. तो यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वर्ड है और उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है. तो वही ये पॉइंट्स भी आपको बता रहा है कि अ, जब कभी भी हम एक कोई सेंटेंस बनाते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं, वी हैव टू टेक इट एज अ कैपिटल लेटर of the first letter of that sentence. Understood? And the second point is every sentence ends with the full stop, full stop, and ex- exclamation mark and question mark. If there is a अगर वहां पे कुछ भी नहीं है तो फुल स्टॉप आएगा या फिर एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा. अंडरस्टूड. ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू राइट और व्हाट वी आर गोइंग टू read. Understood? And in every sentence there should be subject plus verb. वहां पे सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और एक वर्ब होना बहुत जरूरी है. अंडरस्टूड. हाँ, ये 3 पॉइंट हैं. सबसे पहला पॉइंट, हर एक सेंटेंस से पहले हर एक सेंटेंस से हर एक सेंटेंस में उसका जो वर्ड होता है उसका कैपिटल लेटर होना होना चाहिए. और जो सेकेंड पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि वो हमेशा फुल स्टॉप से हम एंड कर सकते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क से कर सकते हैं. अंडरस्टूड. एंड द थर्ड पॉइंट इज वहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब होना बहुत जरूरी है. अंडरस्टूड फ्रेंड्स. सो दिस इज द all about class. In the next, we'll study in the next class.